Good evening and welcome. I'm Shashidhar, Good evening, sir. host of Divine Healing Valley. I welcome you all to the Spirituality and Healing Meet. So welcome, Kevin from Bangalore. Welcome, Tony. I would request all of you, whoever can, switch on their video. Yeah, you can switch on. Good evening and welcome, Preeti ji. Tony, welcome. Gayatri from Baroda, welcome. Renu Prabhaji, welcome. Smriti, Vishakha, welcome. Yeah. So, are we ready? Are we ready to start? Yes, we are. Okay, great, wonderful. So, all of you are excited? Yo. New Year Eve? Yo. Yeah. Yes. 30th December, planning for the big new year ahead. And hopefully, not hopefully, in fact, this has to be created as one of the best years of our life. Yeah, the next year. It's prosperous one. Yeah. Yes. Prosperous one, the most enlightening one, and the most rewarding one, correct? Yeah. All right, good. So all welcome. And how was the week? कैसा था? Last हफ्ता, पिछला हफ्ता कैसा था? How was the last week? So Very good. breakthroughs, breakdowns, life coasting, what all was happening? You can share. Yeah, good evening and welcome, Vishakha. Good evening, sir. Good evening. So who wants to share? Who wants to go first? Share from your life. What happened? What did not happen? What was expected to happen? Yeah, and then we will carry on with our discussions of last week, which was very, very interesting and very engrossing. तो काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारा पिछले हफ्ते, उसी को कंटिन्यू करेंगे. And we will get more insights into what is the most important aspect of our life, which is attachment and detachment. Correct. So this was the discussion we were talking of last week also, and even in that happened in both the groups that I am involved in, and some of you are there in both the groups. So a lot of discussion. बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया डिस्कशन थी. उसी को आज कंटिन्यू करेंगे. लेकिन पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है? कोई शेयर करना चाहेगा? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? कुछ बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं. देन वी विल मूव ऑन. सवाल पूछना है, सवाल पूछ सकते हैं. कोई डाउट्स हो तो क्लैरिटी के लिए आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं. यस, तो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? एनीवन? हेलो. हाँ जी. हाँ भैया. जब से मैंने आपके और संजीव के टच में आई हूँ, मैंने कहीं पे अटकी पड़ी थी. उसने कहा सरेंडर टू डिवाइन. आपने मुझे बोला सरेंडर टू डिवाइन, एंड द थिंग्स हैव, आपको पता ही है, दे ऑल हैव स्टार्टेड मूविंग इन अ वेरी गुड एंड प्रॉस्परस. क्योंकि पहले लगता था कि हम कर रहे हैं. जब मैंने कहा आप कर रहे हो, आप सोचो, तो वो चीजें का जस्ट एक वर्ड्स का थॉट का वो थॉट चेंज हुआ है और चीजें जेन्युइनली वर्कआउट करने लग गई हैं, जो ऑलमोस्ट कितने सालों से स्टक थी. Brilliant, perfect, Preeti ji. Big breakthrough in her life. In fact, since she wants to keep the details, अभी थोड़ा सा रोकना चाह रही है क्योंकि अभी पूरी तरह से manifest नहीं हुआ है. That's fine. So whenever you decide to share, you can share in the group. But wonderful and perfect way of approaching a situation. बहुत बढ़िया तरीके से आपने अप्रोच किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, and I'm sure रिजल्ट फाइनली मैनिफेस्ट हो भी जाएंगे, होना ही है, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका डिफरेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक तो आपका फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, नंबर 1. करेक्ट. नंबर 2, एक चीज होती है, जब हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, देन द यूनिवर्स इज वाचिंग, एक्चुअली द गॉड इज वाचिंग. करेक्ट. इन द प्रोसेस अगर आप क्या करें, आप अगर ऑब्जर्वर बन जाते हो और आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो लाइफ को, देन द यूनिवर्स हैज टू इंटरवेन एंड दे विल डू द नीडफुल. करेक्ट. So you have to look at it both ways. There are, if you see yourself and the divine as two different entities, अगर दो entities है मान लें, तो जब आप काम कर रहे हो तो डिवाइन देख रहा है, अगर आप देखना शुरू कर दो तो डिवाइन काम कर देगा, है ना. इट्स समथिंग लाइक दैट. तो वही मैंने कहा ना, वही एग्जैक्टली सेम फीलिंग आई गॉट कि भगवान जी वेट कर रहे थे कि बेटा तू कर सकते तो तू कर ले, यू डू इट द वे यू वांट. उसके बाद मैंने कहा ना भगवान अब हो गया, बहुत हो गया बस. अब नाउ इट इज माय सरेंडर, कंप्लीट 100% सरेंडर, कि मेरे को नहीं पता, अब आपको रिजल्ट्स निकालने हैं, कैसे निकालोगे आप सोचो. पहले मैं मेहनत कर रही थी बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. अब मैंने कहा मैं बैठी हूँ आराम से, अब आप मेहनत करो, मुझे नहीं पता. दैट गुड. तो इसी को थोड़ा सा स्ट्रगल ना, जब कोई इसी को थोड़ा समझना है कि जब हम बोलते हैं कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट मींस वी आर वर्किंग टू हार्ड एंड मे बी नॉट विद द डिवाइन विल.
डिवाइन विल वहां पे नहीं है जहां हम काम कर रहे हैं. दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग द डिवाइन विल, या आप सरेंडर कर देते हैं डिवाइन विल के लिए, तो डिवाइन विल गाइड यू एंड यू विल बी एक्चुअली फ्लोइंग इन लाइफ. लाइफ में रिजल्ट्स फ्लो करेंगे, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा. आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ किया. करोगे तो सही. अब आप भी अपने लोगों से बात करोगे, मीटिंग्स में जाओगे, जो काम करना है करोगे, लेकिन रिजल्ट्स ऐसे होंगे जैसे आपको लगेगा वाओ ये तो मजा आ गया. मतलब कम, मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स. दैट इज हाउ यू कैन लुक एट इट. जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैक्सिमम एफर्ट्स एंड मिनिमम रिजल्ट्स आएंगे. यू नो, आपके हर एफर्ट का बेस्ट रिजल्ट भी आ सकता है, वर्स्ट रिजल्ट भी आ सकता है. तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बेस्ट मैक्सिमम एफर्ट्स के वर्स्ट रिजल्ट्स आएंगे. लेकिन जब आप डिवाइन के साथ हैं, डिवाइन गाइडेंस के साथ हैं, सरेंडर टू डिवाइन के साथ काम करते हैं, तो आपके मिनिमम रिजल्ट्स के, मिनिमम एफर्ट्स के भी बेस्ट रिजल्ट्स या मैक्सिमम रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो दैट इज एक्चुअली द डिवाइन विल के साथ अलाइन होना. दैट इज द यूनिवर्सल calling, we would say. Align with the universe and energies, and align with the divine. इसका मतलब ये है. Good, wonderful, Preeti ji. No matter what you are spiritually active or not, this alignment is the must. Absolutely. This alignment is must. And actually that is what is spirituality. अगर आप align हो गए divine के साथ, that is what we are talking of. आपकी life की journey ही होगी. अब start हो गए alignment हमारी. Perfect, बहुत बढ़िया. तो big round of applause for Preeti ji for a wonderful result. Yes. Kavan, you want to share something? No, sir. I was just clapping. So. Achha, that's fine. Okay, good. So yes. So Preeti ji ne share kar diya. Anybody else wants to share something? Anybody else? Okay. No, nobody wants to has any breakthrough. All right. Good. So now what we are. Okay, good. That's fine. So if you have nothing much to share, that's fine. You are coasting. अभी आप coast कर रहे हैं, या results की wait कर रहे हैं, या efforts कर लिए हैं, results आने बाकी हैं, so that's fine, right? तो वापस चलते हैं हम अपनी discussion में. और एक insight मेरे को पिछले 1-2 दिन से मैं सोच रहा था इसी टॉपिक के बारे में. तो जो insight मेरे को आई कि काफी लोग जो हैं attachment का मतलब समझते हैं, हम लोग physically भी समझते हैं, mentally भी समझते हैं, किसी चीज से चिपक जाना, right? या तो थॉट में पकड़ लिया या फिर फिजिकली पकड़ लिया किसी चीज को, दैट इज अटैचमेंट. और डिटैचमेंट से काफी लोग ये समझते हैं कि कोल्ड हो जाना, एलूफ हो जाना, इंडिफरेंट हो जाना, हैविंग नो कंसर्न हो जाना, छोड़ के चले जाना, तो ये सब डिटैचमेंट में मानते हैं. तो मैंने एक डिटैचमेंट की जगह पे जो डिस्टिंक्शन डिटैचमेंट की बात करते हैं, उसको मैंने नॉन अटैचमेंट का वर्ड दिया. सो डज दैट जेल विथ योर माइंडसेट? लेट मी नो. क्योंकि मेरे को लगा नॉन अटैचमेंट इज द राइट वर्ड, क्योंकि डिटैचमेंट में लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार छोड़ के जाना पड़ेगा, कट के जाना पड़ेगा, यू नो, इट्स लाइक ब्रेकिंग समथिंग. तो डिटैचमेंट ना बोल के अगर हम नॉन अटैचमेंट बोलें तो क्या आपके माइंडसेट में वो फिट बैठता है? बढ़िया. तो देन यू कैन कंसीडर दैट एज नॉन अटैचमेंट, राइट? जैसे पिछली बार भी ग्रुप में एक बात आई थी कि मिडिल कोर्स है क्या कोई, अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में कुछ है क्या? तो अगर वो बीच वाली मेंटालिटी के साथ अगर हो सकती है, एक और थॉट प्रोसेस हो सकता है कि हमें सिर्फ वापस अपने सतोगुणी आत्मा की तरफ वर्कआउट करना है बस. अभी हमने बहुत कुछ चीजें पकड़ ली है. वी हैव टू वर्क दैट एज द बेसिक रूट, जो जैसे हमें भगवान ने भेजा है, द इटर्नल सेल्फ ऑफ अस, दैट इज सतोगुणी आत्मा विद ऑल दोस लव, दैट इज अनकंडीशनल लव, पीस. कि हमें सिर्फ वो उन्हीं पर्सपेक्ट्स पे वर्क करना है दैट कंसाइज इटसेल्फ कि अटैचमेंट भी और डिटैचमेंट भी है. गुड. सो गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन मेरा पॉइंट ये था, अल्टीमेटली तो यही करना है. और जाना तो हमको ऊपर वाले चक्रास नहीं है. तो जब आप थर्ड आई चक्रा के कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे अगर, तो उसमें आप सिर्फ सतोगुणी क्वालिटीज की ही बात करेंगे, सतोगुण की ही बात करेंगे. तो लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, कंट्रीब्यूशन, यही सब रहेगा. बट वहां तक पहुंचने तक की जर्नी जो है, नहीं, वही मैंने कहा ना कि अटैचमेंट से बाहर आने के लिए इफ वी स्टार्ट ओनली वर्किंग फॉर according to that, we'll be able to achieve that detachment quickly. We'll be able to understand that. बिल्कुल, perfect, absolutely perfect. Because attachment is all in the lower chakras. अगर हम बात करें चक्रास के बेसिस पे, तो लोअर 3 चक्रास जो है हमारे, जो मटेरियलिस्टिक हैं और वर्ल्ड में हमको खींचते हैं, वही अटैचमेंट की जड़ है ना. तो ईगो और अटैचमेंट और फियर वहीं से आ रहा है. फियर से ही तो अटैचमेंट आ रहा है. तो जब भी आप किसी चीज के साथ अटैच हो जाएंगे तो यू विल ऑलवेज हैव वन फियर ऑफ लूजिंग दैट. अगर आप कोई वर्ल्डली पोजीशन की बात कर रहे हैं
चाहे वो कोई फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज हो जैसे घर हो या गाड़ी हो, या फिर वो कोई पोजीशन हो जैसे कि कोई जॉब है या कोई डेसिग्नेशन है। तो अगर आप उनसे अटैच हो गए हो तो वो तो छूटना ही है कहीं, तो फियर ऑफ लूजिंग रहेगा। जैसे अगर आप नंबर 1 है हर जगह पे, नंबर 1 फिल्म एथलीट है, नंबर 1 एक्टर है, तो आपको हमेशा रहेगा कि यार कोई और नंबर 1 ना आ जाए, मेरा नंबर 1 ना चला जाए, तो देयर इज ऑलवेज ए फियर ऑफ लूजिंग। तो एक तो ये अटैचमेंट में ये फियर आता है, करेक्ट। तो ऑल दीस आर पर्टेनिंग टू द लोअर चक्रास ओनली। हम बात कर रहे हैं जो जिस सतोगुण की, वो तो है ही अपर चक्रास की, लोअर मतलब हायर चक्रास के हैं। तो ऑब्वियसली आप अटैचमेंट से बाहर निकलेंगे तभी वहां पहुंचेंगे। उसका रास्ता कैसे है वही आसानी से जो हम समझ सकें उसी पे बात करनी है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑन। तो ग्रेट, वंडरफुल एंड तो बहुत बढ़िया आपने बोला। नाउ लेट्स हैव मोर थॉट्स अबाउट दिस। कि मेरा सवाल अभी भी बाकी सबके लिए, जो लोग आज नए भी आए हैं, अगर आप डिस्कशन में नया आ रहे हैं, तो आपको भी यही देखना है कि अटैचमेंट से हम कुछ समझते हैं लाइफ में और डिटैचमेंट से कुछ समझते हैं। और मैं एक नया वर्ड दे रहा हूँ आपको, अगर आप नॉन अटैचमेंट बोले तो क्या आपको वो आसानी से माइंड में एडजस्ट होता है या आप उसको मतलब अलाइन कर पाते हैं? यस, हाँ जी। एक्चुअली ये नॉन अटैचमेंट वर्ड है ना, यही ज्यादा फिट वर्ड है। कारण ये है कि जो अटैचमेंट है, आप जैसे हम इसको हिंदी में कहें, अटैचमेंट मीन्स राग। जिस चीज को हम लाइक करते हैं, जिस चीज को हम अपने पास रखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड राग और अटैचमेंट। और इसका अपोजिट होता है द्वेष। द्वेष मीन्स डिटैचमेंट। उसको हिंदी में डिटैचमेंट को द्वेष कह सकते हैं। जिस चीज को हम अपने पास नहीं रखना चाहते, उससे घृणा करते हैं, उससे बचना चाहते हैं, उसको दूर रहना चाहते हैं, उससे, उसी को द्वेष कहते हैं हम। तो ये राग और द्वेष ये दोनों ही गड़बड़ करते हैं, दोनों ही अपोजिट चीजें हैं। इनसे दोनों से बचने के लिए हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। यदि बात गीता में आती है राग और द्वेष से बचना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी इंद्रियां राग और द्वेष से प्रभावित होकर हम लोग कर्म करते हैं, तो जो कर्म हम राग और द्वेष से रहित होकर करते हैं, दैट इज उसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है वो नॉन अटैचमेंट ही है। ना तो राग है ना द्वेष है, दोनों से बचने की बात है। तो ये आपने बहुत बढ़िया वर्ड ढूंढा है इसके लिए। एक्चुअली डिटैचमेंट जस्ट अपोजिट हो जाता है और उसका वही इफेक्ट होता है जो अटैचमेंट का होता है। तो ये बिल्कुल सही है, नॉन अटैचमेंट इज ओके। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट यही मैं जब सुबह में मेडिटेशन में बैठा था, थॉट आया, इंट्यूशन आई, तो मैंने फटाफट वो वर्ड नोट कर लिया। मैंने कहा बाद में ढूंढूंगा इसका मतलब क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ कहीं। तो मेरे को बाद में एक ख्याल आया कि मे बी दिस इज द वे हाउ यू कैन इजिली एडजस्ट टू इट। और अभी बहुत बढ़िया जैसे बताया गया, भगवत गीता में भी अगर यही बोला गया, तो आई हैव नॉट रेड इट कंप्लीटली, लेकिन अगर नहीं यही बोला गया है। हाँ, जो अंकल जी ने बताया वही बोला गया। तो राग और द्वेष जो है, तो अगर हम वैसे समझ सकते हैं कि राग हो गया स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई तुम्हारी, एंड द्वेष इज एवर्शन और रिपल्शन, और तो वो एग्जैक्टली वही है कि आप उससे भाग रहे हैं। तो एक में आप चिपक रहे हैं, एक में दूसरे से भाग रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का रास्ता ये नॉन अटैच। आप वहीं हो, रह रहे हो वहीं, कहीं नहीं जा रहे हो, लेकिन उससे अलग, राइट। जैसे हमने कहा कमल जैसे कीचड़ में खिलता है, तो वही सेम चीज जैसे अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, ये भगवत गीता का ही स्टेटमेंट था जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को मेंटली उनसे अटैच नहीं करना। तो यू हैव टू बी अटैच्ड, स्टेइंग अटैच्ड। So we have now a new word for that, that is non-attachment. Unattached. Perfect. So we will all stick to this because ये mind में भी मेरे ख्याल से आसानी से बैठ जाता है कि ना attachment है ना detachment है। ये acceptable है, easily acceptable है, आराम से जल कर जाते हो उसके साथ, और समझ में भी जल्दी से आ रहा है आपको, करेक्ट। तो अब हमको ये देखना है, मेरा पॉइंट पिछली बार का जो था वो अभी भी वही है। मैं पहले एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो लोग पिछली बार थोड़ा सा शायद नहीं आए थे उनके लिए, कि attachment will always create pain. Okay, and now we say non-attachment will always radiate power. Correct? तो detachment की जगह हमने non-attachment कर दिया। तो ये है स्टेटमेंट जो आपको समझना है और देखना है आपको अपनी लाइफ में कहाँ पेन हो रहा है। कोई भी पेन एरिया है आपकी लाइफ का, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो वेल्थ में हो, या रिलेशनशिप में हो, या कहीं भी आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आपको ये देखना है कहाँ मैं अटैच हो गया हूँ, क्योंकि अटैचमेंट विल ऑलवेज क्रिएट पेन and non-attachment will give you the power to be free. फ्रीडम मिलेगी आपको, पावर मिलेगी आपको, वो सब नॉन अटैचमेंट से मिलेगी, करेक्ट। तो अपनी अपनी लाइफ में देखिए एंड देन शेयर कि कहाँ आपको लग रहा है कि आप अटैच हैं। फिर मैं थोड़े से एग्जांपल्स देता हूँ, उससे भी क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि फिजिकल अटैचमेंट तो बड़ा क्लियर हो जाता है, राइट।
अब जो नहीं थे पिछली बार और जिन्होंने, अच्छा जो बाय द वे जो लोग पिछली बार नहीं आए थे उन्होंने वो वीडियो देखा है जो मैं अपलोड करता हूँ? एनीबॉडी हु मिस्ड आउट हैव सीन द वीडियो? No. Yes, I've seen. Yeah. So you need to see that because otherwise you will not be part of the discussion जो आगे चल रही है, ठीक है? तो डोंट वरी, अभी हम लेके चलते हैं। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि जब कोई फिजिकली अटैच्ड होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप उसको प्यार नहीं कह सकते, है ना? जैसे अगर कोई कॉन्जॉइंट ट्विंस है, हमने बात करी थी कि अगर दो जुड़वे बच्चे हैं और वो जुड़े हुए हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सोएगा दूसरे को भी सोना ही पड़ेगा, एक उठ के जा रहा है तो दूसरे को भी उठ के जाना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो फिजिकली अटैच होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमने बचपन में भी कुछ खेल खेले हैं, आपको अगर याद होगा, 3 लेगेड रेस हम खेलते थे, 2 पार्टनर दौड़ते थे और एक पाँव बांध देते थे दोनों को। बड़ा अच्छा है ना लाइफ, अगर ऐसी लाइफ चले तो वो 2 मिनट में जान निकल जाती है कि ये रेस खत्म हो और जल्दी से फ्री हो जाए ताकि तुम अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जियो और मैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। So physical attachment is always a problem. That is what we need to understand. Attachment चाहे physical हो या mental हो, it is always a bondage. वो सिर्फ pain ही create करेगा, right? So we have to be very very aware and clear कि attachment will always create pain. और कहीं pain हो रहा है तो आपको attachment ढूंढना है। पेन का सीधा निवारण मत ढूंढो, पहले अटैचमेंट देखो क्या है, वो आपकी जड़ है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ योर पेन। और जैसे ही आप अटैचमेंट से फ्री हो जाओगे, योर पेन विल गो। करेक्ट? मेकिंग सेंस? या एवरीबॉडी कनेक्टिंग विद दैट? एंड नॉन अटैचमेंट जो हम पहले डिटैचमेंट बोल रहे थे, हम उसको अब नॉन अटैचमेंट बोल रहे हैं। तो नॉन अटैचमेंट विल ऑलवेज रेडिएट पावर एंड फ्रीडम। So everybody connect, okay with that? Right. So let's have some more sharing. कौन शेयर करना चाह रहे हैं? क्या आपका पेन एरिया है और क्या दिखा आपको, या पिछले एक हफ्ते से अगर आप सोच रहे हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कहाँ पे पेन एरिया था, क्या अटैचमेंट थी? Now what could be the possible ways of attachment? As we said, एक physical materialistic world में आप जी रहे हैं, right? So you can be attached to your job, you can be attached to possessions. Your possessions जो हैं आपके, तो घर हो गया, गाड़ी हो गई, कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, राइट? तो घर है, गाड़ी है, तो बहुत सारे पोजीशंस हो सकते हैं आपके। अलमारी में रखे हुए आपका वार्डरोब हो सकता है पूरा, यू मे बी वेरी अटैच्ड टू इट, ओके? यू मे हैव हंड्रेड्स बट देन यू डोंट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ, रखा हुआ है। पहनना आपको 2 ही है, पहनना आपको 5 या 6 ही है, लेकिन पूरे के पूरे 100 चाहिए, वहाँ दिखने चाहिए। तो ये भी एक तरीके का एक अटैचमेंट है। या और अगर हम इसको यम के जो हमारे 5 नियम हैं, जो अष्टांग योग के जो पार्ट हैं, उसमें देखेंगे तो बड़ी क्लियरली समझ में आ रहा है कहाँ पे जाएगा ये, है ना? तो ये अपरिग्रह जो बोलते हैं हम इसे, विच मीन्स नॉन पोजेशन, नॉन एक्यूमुलेशन, नॉन एक्विजिशन, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ये अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। बट देयर कैन बी मेनी अटैचमेंट्स, राइट? जो योग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे विल गेट अटैच्ड टू इट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द अटैचमेंट्स, किस तरीके के अटैचमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। ये तो हो गया चीजों से, राइट? फिर अपनी पोजीशन से हो सकता है, मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं परिवार का मुखिया, ओके? ये हमारे खानदान की परंपरा है, तो खानदान के हेड बने हुए हो आप, तो यू विल बी अटैच्ड टू दैट। So anybody does anything that doesn't respect you, I am the head of the family, how come you don't respect me? I am the GM of the office, how come you don't respect me? तो आप उस पोजीशन से अटैच हो गए, करेक्ट? अल्टीमेटली पोजीशन ने भी जाना है और आपको भी जाना है। तो जब भी वो जाएगा वो पेन रहेगा। तो उसके डोमिनेशन में अगर आप लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर चाहिए आपको, रेस्पेक्ट चाहिए आपको, और वो जबरदस्ती उस पोजीशन के दम से ले रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का अटैचमेंट है, करेक्ट? अटैचमेंट है। नाउ यू कैन आल्सो बी अटैच्ड टू पीपल, एंड वेरी वेरी, और ये इतना सटल होता है कि हम समझते हैं कि वी आर एक्चुअली इन लव विद द पीपल, बट यू आर एक्चुअली गेटिंग अटैच्ड टू देम। और अटैचमेंट में फेयर होता है, बॉन्डेज होती है, लव नहीं होता। अगर आपको अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करना है, इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन अटैचमेंट। अटैचमेंट से कभी भी आप अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ओके? तो यू हैव टू अगेन सी, अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम है, आप अटैच हो गए हैं 100%। अगर रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम है, आपको रिस्पेक्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बात माने, वो नहीं मान रहे और आपको गुस्सा आ रहा है, हर्ट हो रहे हो, एंग्री हो, अपसेट हो, ये सब क्या है? दिस इज ऑल्सो एन अटैचमेंट। यू आर अटैच्ड टू ए इम्प्रेशन
या आपका आपने एक धारणा बना ली, अपनी एक क्या बोलते हैं परसेप्शन बना लिया, या एक आपने अपना एक आइडिया बना लिया, एक्सपेक्टेशन बना ली, उसको ऐसा करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है देन आई विल गेट एंग्री और अपसेट। ये भी अटैचमेंट है। यू आर अटैच्ड टू योर आइडिया ऑफ हाउ दे शुड बिहेव, राइट और रॉन्ग? Yes, Yeah. correct. Making sense? Yeah, correct. Yeah. Okay, so what are the other kind of attachments that possibly you can have? तो मेरे को कुछ ये जो दिमाग में आ रहे थे मैंने फटाफट बता दिए। और भी तरीके के बहुत सारे अटैचमेंट हो सकते हैं। तो जहां आपका पेन एरिया है और क्या अटैचमेंट है आपकी लाइफ में, वो देखिए और फिर शेयर करिए। या एनीबॉडी यू वांट्स टू शेयर? क्योंकि वरना ये मोनोलॉग हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा एनर्जी मेरे को मिलती नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ बात करेंगे तो मेरे को वापस एनर्जी मिलेगी। I just wanted to say something. Yeah, sure. As we are talking about attachment along with pain, correct? मतलब pain and attachment goes together. वैसे ही force of something also is a pain in your life. कोई चीज मजबूरी में कर रहे हो, that is again giving you pain, right? Correct. Yes. So how should you overcome that? कि means so force नहीं लगे and you don't feel that upsetness or pain, whatever it is. Yeah. So when you are being forced to do something, then are you being pressurized? You are saying to say, correct? Pressurized. Yeah, बिना इच्छा के means मजबूरी है, करना ही है. You have no other choice. No other choice. Okay. So first of all, let me give you a very bold statement. उसके बाद मैं जवाब दूंगा. So the only thing you have to do is breathe. All the other things are your choice. Okay. सांस लेना जरूरी है. The only thing that you have to do is breathe. सांस लेने के अलावा कुछ भी और आपको करना जरूरी नहीं है, ये मेरी चॉइस है। अगर आप ये मान लोगे पावर आ जाएगी आपके पास। देखिए बाकी सब जो मर्जी बोलें, कोई बोल सकता है, कोई कह सकता है, कोई हाथ पकड़ के आपका काम करा रहा है, नहीं। कोई हाथ पकड़ के काम करा रहा है देन तो यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग। या कोई गन रख दे आपके सर पे और बोले करो, तो आप यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग। बट अगर ये दोनों फिजिकली कोई फोर्स नहीं कर रहा है then you are playing the role of a victim. So you are attached to an image that I am helpless. You are attached to an image कि मैं weak हूँ, helpless हूँ, power नहीं है, dominating है दूसरा, तो आपकी self image थोड़ी सी मार खा के बैठी हुई है। You are attached to a self image which is weak, which is negative. शशि सर, ये attachment है। एक second. Let her just get it, then I'll come back to you. Okay. So Vishaka, what I'm trying to say is, अगर आपको ये लग रहा है कि I am being forced to do something, then you need to understand आपके attachment एक ऐसे image के साथ है जो आप नहीं हो, वो truth नहीं है। Truth क्या है? You are a powerful soul, you are a peaceful soul, you are a loveful soul. ये है reality। आप कौन से image के साथ attach हो गए? I am weak, I am helpless, I am a victim. मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक चीज होगी, सारे नहीं होंगे। करेक्ट? उसका डिफरेंट वर्जन है, तो कौन सा फ्लेवर आपको पसंद आ रहा है आप उस पर अटैच हो गए हो। कोई बोलेगा आई एम वीक, कोई बोलेगा आई एम हेल्पलेस, कोई बोलेगा ही सेड हिटलर, ही और शी जो भी है, बॉस हिटलर है इसलिए मेरी हालत खराब है, हाँ वाइफ हिटलर है इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद है। तो ये आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो और आप उस इमेज से अटैच हो गए हो। सच्चाई नहीं है ये। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा आप उससे फ्री हो जाओगे। ओके, तो थिंक अबाउट इट एंड इफ यू वांट टू शेयर समथिंग आई विल कम बैक टू यू। यस रेणु जी, आप बता रहे थे कुछ। नहीं सर, मैं उसी में ही कह रही थी, कई बार होता है कि अपनी अच्छी इमेज रखने के लिए या सोसाइटी में जैसा आपने अपने आप को बना रखा है उसको मेंटेन करने के लिए भी आप उस काम को करते रहते हैं, उसमें भी तो एक अटैचमेंट है, वो जो आपकी एक अपनी इमेज है उसके लिए। बिल्कुल है, तो यू आर अटैच्ड टू दैट इमेज। क्योंकि अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी अटैचमेंट मतलब जो आपकी इमेज है वो स्पॉइल हो जाती है कि आप उससे हट के कुछ और मतलब दिखाई देते हैं लोगों को। तो आपका यही है कि लोगों के सामने आपने एक इमेज बना रखी है और उसको उसको मेंटेन करने के लिए आप कई बार उन वैसे काम कुछ कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो या तो आप हमेशा हाँ बोलेंगे, आपको ना बोलने की फ्रीडम नहीं है, की आदत नहीं, फ्रीडम नहीं है, आदत तो हो आप चाहते हो ना बोलना लेकिन बोल नहीं सकते। हाँ, बोल नहीं सकते। आप इमेज से अटैच्ड हो और वो इमेज ना नहीं बोल सकती। ओके, तो इट कुड बी लाइक एल्डर्स के सामने ये नहीं बोलना या ये नहीं करना है। यू आर फीलिंग हेल्पलेस कि यार करना पड़ेगा ना, काइंड ऑफ थिंग, यू डोंट वांट टू डू इट बट कहाँ करना पड़ेगा, तो वहां पे आप थोड़ा सा
आपकी पावर फ्रीडम खत्म हो गई है. क्यों? यू आर अटैच्ड टू ए सेल्फ इमेज. सो व्हेन यू डू इट विथ लव एंड it should be flowing from your heart. Okay, first you accept a situation को एक्सेप्ट करो. हाँ, ये सिचुएशन है. अब आपको कैसे उसमें बिहेव करना है, इट्स योर चॉइस. डू इट विथ फुल फ्रीडम एंड पावर. काम वही करना है, लेकिन माइंडसेट क्या है वो चेंज करना है. क्योंकि पेन सिर्फ माइंड में है, अटैचमेंट सिर्फ माइंड में है. क्योंकि मैंने बताया, अगर कोई हाथ पकड़ के आपका करा रहा है तब तो आप फोर्सिबली करा रहा है. अगर कोई हाथ पकड़ के नहीं करा रहा है या गन पॉइंट पे नहीं करा रहा है, देन it is not a forcible decision from them. You are playing that victim card. Correct? Making sense? All right, good. Anybody else who wants to share something? कोई share करना चाह रहे? क्या खुल के आ रहा है इसमें? क्या insights आ रही हैं? कौन से एरिया में पेन है? क्या अटैचमेंट है? अटैचमेंट अभी हम सिर्फ डिस्टिंग्विश करें, सॉल्यूशन नहीं देख रहे. आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं प्रॉब्लम के पीछे अटैचमेंट कहाँ है. क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा अटैचमेंट कहाँ है, कि हमारी ये दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट आपकी है ना, सामने वाले की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, देन यू विल गेट फ्रीडम. तब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपने उस पेन के लिए, अपने उस सफरिंग के लिए, अपनी उस मिजरी के लिए, और फिर आप उसका हल निकालेंगे. जब तक आप दूसरे को ब्लेम करेंगे, इट्स वेरी इजी, यू डोंट हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ओनली थिंग यू हैव टू डू इज ब्लेम. करेक्ट? सब कुछ. हाँ जी, आप शेयर करना चाह रहे हैं रमेश जी? अभी प्रीति जी ने एक बात कही थी कि समटाइम्स वी हैव टू परफॉर्म समथिंग अंडर ड्यूरेस और अंडर फोर्स और समथिंग. तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज फोर्सिंग अस, व्हाट इज द फोर्स. Is there somebody else, or is it our own feelings or our own impressions? That means you say that sometimes we have to perform something to maintain our position in the society or whatever it is, so that it may not be damaged. कि आज तक मेरी तो ये कंडीशन थी और आज मैं ये काम करूंगा तो ये खराब हो जाएगा. इसमें दो ही सिचुएशन हो सकती हैं. या तो ये जो काम आप करने की सोच रहे हैं उससे आपकी इमेज खराब होती है, इसका मतलब ये है कि वो काम ठीक नहीं है, वो एंटी सोशल वर्क है और आपको फोर्सिबली वो करना पड़ रहा है. वो फोर्सिबली भी करना पड़ रहा है तो पहले आप अपनी कॉन्शियस से पूछेंगे दैट इज गुड और बैड. अगर हमारी कॉन्शियस कहती है वो तो गुड है, तो फिर उसके बाद भी हम उसको अगर मेंटेन करने की इच्छा से करते हैं, उसका मतलब होता है कि जो हम हैं नहीं वो हम दिखाना चाहते हैं. That means what? That means दम्भ या ढोंग या हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी बोलेंगे हम. जो हम हैं नहीं उसको हम दिखाना चाहते हैं. हम तो बहुत भजन करते हैं, हम तो बहुत ध्यान करते हैं. किसी को कह दिया हम रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, और जबकि आप उठते 6 बजे भी नहीं है. और समाज में कभी किसी को आपको कहीं सोना पड़ गया एक साथ में, तो लोग कहेंगे अरे ये तो 6 बजे तक सो रहा है, वो रोज बोलता है 4 बजे तक. तो आप 4 बजे उठने के लिए फोर्स हो गए उस टाइम पर. तो इसका मतलब क्या हुआ? हु इज फोर्सिंग यू? आपकी अपनी फीलिंग्स ही हैं जो फोर्स कर रही है आपको, या आपने जो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया है वो आपको फोर्स कर रहा है. तो इसके हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा. ये फोर्सिबली जो बात है ना, ये फोर्सिबली में ये सोचना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द फोर्स, हु इज फोर्सिंग अस, तब उसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट. सो गुड इनसाइट. तो जैसे अभी बताया गया, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द सर्कमस्टांसेस, दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी राइट, एंड दैट विल डिसाइड योर कर्मा, राइट. तो जब वो आपके कर्मा को डिसाइड कर रहा है, तो जैसे हम बोलते हैं कि कर्मा की अगर क्वालिटी आपको डिफाइन करनी हो, किसी भी कर्मा की अगर क्वालिटी देखनी हो, जैसे बोला कि अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा ये होता है कि इंटेंट क्या है और उसके पीछे की इमोशन क्या है. तो इसको बोलते हैं भाव और भावना. दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट कर्मा. ओके, तो सबसे पहले तो जैसे बताया, पहले देखो. या श्योर. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना, जैसे घर में एल्डर्स होते हैं, एक बार अगर आप उनकी सेवा करते हो या उनकी टेक केयर करते हो, उनके लिए करते हो, अगर आप ये सोच के करोगे कि ये मेरी मतलब आई एम फोर्स्ड टू डू इट, तो यू विल नॉट हैव दैट फीलिंग टू डू इट, यू विल ऑलवेज बी फोर्स्ड जस्ट टू कीप योर इमेज, यू आर डूइंग दैट. अगर आप वही चीज अपना थॉट प्रोसेस से सिर्फ चेंज करके कि मुझे करना है एंड आई एम एंजॉयिंग डूइंग इट,
तुम्हें कोई वो पेन ही नहीं फील होगा उसको करने में। इट इज अ वेरी थॉट की जो जैसे बच्चे कभी हमारा कोई भी किसी का भी फॉर दैट मैटर जब बच्चा हो ड्रिंक कर आ गया घर पर, पेरेंट्स ने पकड़ लिया, भैया उसका सबसे पहला आंसर ये होगा कि उस दोस्त ने पिला दी। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि उसने तुम्हारे मुंह में डाली थी क्या? उसने तुम्हें फोर्स कैसे किया? अगर तुम्हारी विल इतनी स्ट्रांग होती तो तुम उसको ना कर आते। अगर तुम नहीं कर पाए दैट मींस यू वर वीक समवेयर, यू डिडंट से नो। तो छोटा सा एग्जांपल ही है, बट आई थिंक वो चीजें कुछ विशाखा को क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। और इसी को पेयर प्रेशर भी बोलते हैं। जैसे अगर बच्चे हैं कॉलेज में हैं, नए नए गए हैं, तो एक जना बंक कर रहा है तो दैट बिकम बंकिंग द क्लासेस बिकम्स ए वेरी फैशन काइंड ऑफ ए थिंग। करना ही है बंक, कुछ और करना भी नहीं, बेशक बाहर बैठे होंगे लेकिन क्लास बंक करनी है और फिर मूवी जाना है, देन पार्टी में जा रहे हैं तो दे विल हैव वन सिगरेट एंड वन ड्रिंक। तो ये पेयर प्रेशर में भी लोग कर लेते हैं और फिर पकड़े जाए उस समय तो एंजॉय करते हैं, दे विल आल्सो एंजॉय बिकॉज़ दे एंजॉय द कंपनी। एक्ट को एंजॉय करे ना करे, दे एंजॉय द कंपनी ऑफ द पीपल। उस समय कंपनी बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है उनके लिए, बिकॉज वो ऐसी ग्रोइंग एज है जैसे एडोलेसेंस हो या टीनेज हो या जो भी हो, दे वांट द कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स दैट टाइम। सो दे माइट डू हियर एंड देयर, थोड़ा सा रूल्स को तोड़ेंगे, चलता है, वो ओके है। नाउ व्हेन दे आर कॉट दे वुड से, जैसे आपने कहा किसी के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, बट इफ यू आस्क मी, वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट स्टेज, राइट? Yes. My idea is that yes, peer pressure में आए थे और ये किया, but if you are aware of it and if you are doing it with intention and उसका जो आप बोलते हैं कि इमोशन क्या था, तो अगर फोर्सिबल लग रहा है then you have to understand, जैसे अभी बहुत सही बताया, circumstances क्या है, what is forcing you, उसको देखना है। उसके बाद अपनी quality of karma को चेक करो, that is where the realization will come. And that will give only 2 parameters, सिर्फ 2 parameters देख लीजिए आप उसमें, है ना? सबसे पहले तो ये है कि ये आपके लिए किसी और के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, that means it should not be something like antisocial. Okay, you are taking drugs and then driving and then ending up with an accident, that's a huge criminal thing kind of a thing. तो law and order को के लेवल में हमको रहना है कि उसके अंदर ही हमको दायरे में काम करना है। अब जो अच्छा है या ये बुरा है, उसमें सिर्फ 2 ही चीजें अगर आप देखें तो काम हो जाता है। One is जैसे ऐसे भाव, the intent, and second is bhavna, the emotion, क्या emotion है उसमें, and if you're enjoying it and if you're doing within limits and if it is nothing illegal or wrong, you're not hurting anybody else, you're not hurting yourself, then we should be accepting that as a standard level, correct? That's what I would suggest. बाकी हर एक का अपना अपना perception है उसमें। वही exactly मैंने कहा ना कि blame game बहुत खेलते हैं, we try to be victim of something which we actually are not, जस्ट कि अपने आप से वो पिंडा छुड़ाना है। कहते हैं ना कि किसी पे डाल दी बात खत्म, और पेरेंट्स भी बड़े मजे से कहते हैं हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था, उसकी कंपनी में ऐसा हो गया। Nobody forced your child to be in that company. Correct. So that we have to understand. Peer pressure रहता है, हम भी फॉलो करते हैं, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो कोई चीजें पेयर प्रेशर में कर लेते हैं। But you should be, वही मैं कहा, that understanding is important. Yeah. That you have to understand the situation. क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना और कहाँ तक करना, you have to draw the line कि ये मेरी लिमिट है। Yes. Okay. And that will come with the awareness and the realization. और जब वो clarity आ जाती है, then you will be able to communicate that very clearly to, चाहे वो people higher authority में हो या boss हो या friend हो या parents हो, जो भी हो, आप बोल सकते हो ये मेरी लिमिट है, ये क्रॉस नहीं करूंगा, so I should be fine, don't worry. Even if I'm going to a party, even if I'm having that, it's fine. I know the limit. This is the limit. इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। So अगर वो clarity है, then it's perfect. Otherwise थोड़ा सा वरी का या जो भी आप बोलो concern का issue है। Okay, good. So that gives us a lot of clarity, right? Okay. So what are the other things that you can be attached to? Let's come back. Attachment और किस चीज से हो सकती है? Self image से हो सकती है। Okay. So that is one thing that has come up in this discussion. सेल्फ इमेज के साथ आप अटैच हो सकते हो, अपने कर्मों के साथ अटैच हो सकते हो, वो भी हमने देख लिया कि गलत कर्म नहीं होने चाहिए, तो कर्म की क्वालिटी को मैनेज करना है। एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी काम में, आप जो मेरे को तो ये करना ही है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, तो आप एडिक्ट हो गए, तो वो भी लिमिट क्रॉस कर गए। एडिक्ट का मतलब आप लिमिट क्रॉस कर चुके हो, परमिसिबल लिमिट्स, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। तो एनीथिंग विद इन लिमिट्स इज ओके, एनीथिंग एक्सीडिंग द लिमिट इज एन अटैचमेंट, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो,
खाना ही क्यों ना हो, खाने से अटैच हो जाओगे तो भी मुश्किल है, सोने से अटैच हो जाओगे तो भी मुश्किल है, कुछ नहीं करना आलस में पड़े हुए वो भी मुश्किल है। थोड़ा बहुत यस, या आपको टीवी देखने का है, लिमिट में देखोगे ठीक है, मोबाइल है आजकल, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसी में आप एडिक्ट हो जाओगे तो प्रॉब्लम है। तो यू शुड नॉट बी अटैच्ड टू एनीथिंग, यूज करो, एंजॉय करो, एक लिमिट में करो और अपने लिमिट खुद सेट करो एंड एस्टैब्लिश कर दो। एस्टैब्लिश मींस विद द पीपल अराउंड, डिक्लेयर कर दो, रूल सेट कर दो एंड देन यू एंजॉय इट। Everybody knows about it, there won't be any complaints and there won't be any worries. Making sense? Okay, let's have more discussion. किस और तीन और चीजों से हम अटैच हो जाते हैं? Failures and success is another thing. कोई अपने सक्सेस से अटैच हो जाता है तो कोई अपने फेलियर से अटैच हो जाता है। आई एम ए फेलियर अगर बोलना शुरू कर दे तो भी प्रॉब्लम है। अगेन इफ रॉन्ग सेल्फ इमेज या लो सेल्फ इमेज उसके साथ अटैच हो जाओगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। फिर वो डिप्रेशन एंड ऑल सब शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, आई एम नॉट गुड इनफ आ जाएगा, आई एम ए फेलियर, आई एम ए लूजर। ओके, एंड वी हैव सीन मेनी इंस्टेंसेस, एक्चुअल लाइफ में भी देखा है, मूवीज में भी देखा है। तो वो सब आप एक गलत लूप में चले जाएंगे उसमें, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओके, व्हाट एल्स? और क्या अटैचमेंट्स हो सकती हैं? अटैचमेंट अच्छे कामों से भी होता है, बुरे कामों से भी होता है, तो अच्छे कामों से भी अटैचमेंट होता है। मान लीजिए हमने 5 साल पहले कोई चीज़ दान कर दी किसी को और आउट ऑफ वे जाके दान कर दिया, हेल्प कर दिया, तो हम उसको भूलना ही नहीं चाहते कभी। उस आदमी से अगर हमें कभी रिटर्न नहीं मिलता है या कुछ उल्टा रिटर्न मिलता है, या वैसे भी कभी समाज में हम बैठे होते हैं तो अपनी डींग हाँकने के लिए कह देते हैं कि अरे मैंने तो इतने काम किए हैं, मैंने तो इतना दान किया है, इतना ये किया है। तो जब तक उस अच्छे काम को करके आपने भगवान के अर्पण नहीं किया, आप भूल नहीं गए उससे, आप तब तक हम अटैच हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अटैचमेंट है। वो जैसे सब चीज़ों को नॉन अटैच्ड होना है, तो इससे अनअटैच होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। नॉन अटैचमेंट ये और भी सबसे मुश्किल काम है कि अच्छे काम को करके हम, अब जैसे कहते हैं ना कि आपने कह दिया कि भाई गॉड विल डू, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो गॉड विल डू। एक्चुअली एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, लेकिन हम उसको अपने को कर्ता मान लेते हैं कि हमने किया है। ये हमारे गुणों से होता है या हमें भगवान ने समर्थ बनाया तब होता है, लेकिन हमने कह दिया, अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया कि हमने ही किया है। तो दैट इज ऑल्सो ए बिग अटैचमेंट, उसको हम कभी नहीं छोड़ पाते हैं आसानी से। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड बहुत बढ़िया एक चीज जो बताई अभी कि यू कैन ऑल्सो बी अटैच्ड टू योर गुड थिंग्स, करेक्ट। तो अब कई बार मैंने भी देखा, जो अभी बताया वो तो क्लियर है सबको, राइट। कुछ और भी चीजें होती है, जैसे आप बिल्कुल कमिटेड हो कि भाई मेरे को तो शाम को ये 6 से 7 वाला, जैसे यही है वेडनेसडे को 8 से 9 मेरा एक सेशन है, तो मेरे को ये करना ही है। नाउ यू कैन से कोई कमिटमेंट है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अटैचमेंट भी है, कहीं ना कहीं मेरे ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ओके, बट आई विल नॉट से दिस इज मोर लाइक एन अटैचमेंट, दिस इज मोर लाइक ए कमिटमेंट, राइट। कि मेरी ये कमिटमेंट है कि ये होगा, एंड जस्ट बिकॉज आई हैव सेड होगा, ये होगा, दैट्स इट। सो इट्स वन प्लानिंग दैट आई हैव डन। बट हो सकता है कोई चीज ऐसी आ जाए, जैसे हो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं वो नहीं कर रहा, मेरे को तो वेडनेसडे को ये करना ही है। नो, देयर आर ऑप्शंस, राइट। तो अटैचमेंट इतना भी नहीं होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो, आई विल नॉट बच फ्रॉम वेडनेसडे 8 to 9, दैट डजंट मेक सेंस। तो कई बार आपने देखा होगा मेरी रिक्वेस्ट आ जाती है वेडनेसडे नहीं थर्सडे करते हैं, ट्यूसडे करते हैं, या तो इफ देयर इज सम अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द फैमिली, जैसे मैरिजेस के पीछे, सो वी डिड दैट। सो you should never be attached to even a good thing that you are doing, okay? So and never be, जैसे बताया कि never say कि I have done it, we are nobody to do anything, we are just channels। तो healers को तो वैसे ही हम लोग channels बोलते हैं, right? तो अगर आप रेकी हीलर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, तो हम माध्यम, अपने आप को हीलर तो बोलते भी नहीं, we just say we are a channel। तो the divine energy is flowing through us and then going for the welfare of the humanity। तो वो डिवाइन कर रहा है जो भी कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो डिवाइन कर रहा है और मेरे थ्रू जा रहा है। सो आई एम ए चैनल। तो नॉर्मली रेकी जो भी बोलते हैं, रेकी हीलर्स नहीं बोलते, रेकी चैनल्स ही बोलते हैं। सो यू टू अंडरस्टैंड दैट कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो जब वो कर्ता वाला भाव ही हट जाएगा तो सब कुछ सरेंडर वाला भाव बड़ी आसानी से आ जाता है। और ये पॉइंट बिल्कुल और ज़्यादा एस्टैब्लिश भी हो जाता है, क्लियर भी हो जाता है कि
कि आपको किसी चीज का घमंड नहीं होगा कि मैंने ये कर लिया, राइट? सो अच्छा करो, जैसे बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। डाल। So you do the good things and then forget about it. It will come back to you. It has to come. ये natural law है. ये तो कर्मा का साइकिल है. अच्छा करोगे तो अच्छा वापस आना ही है. उसके ऊपर घमंड करने का और सुनाने का और जिंदगी भर सुनाते रहने का कि मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने सुनाते रहते हैं बहुत सारे लोग कि उसके लिए तो मैंने ये इतना कुछ किया और फिर उसने क्या किया, देखो ये किया. That doesn't make sense. So you are again doing some, you can say bad karma उसमें ऐड हो जाएगा. इमोशन, जैसे बोलते हैं ना, भाव और भावना की बात कर रहे थे हम. इंटेंट क्या था उस समय? सर्व करने का था, हेल्प करने का था, गुड. लेकिन इमोशन क्या आ गया अब इसमें घमंड आ गया, अहंकार आ गया. तो वो भाव और भावना सही रखोगे तो कर्मा सही रहेंगे. लेकिन यहाँ वो गड़बड़ हो गया तो आपका कर्मा का क्वालिटी अपने आप गिर जाएगा. So this is what you need to take care. All right, good. Any other points? और कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं? Anybody who wants to share? Smriti, Tony, anybody who wants to share something? Kavan wants to share something? जिन्होंने अभी तक नहीं शेयर किया, क्या चल रहा है दिमाग में? किसी पेन एरिया में हो तो शेयर करो. Kavan, you have been on a silent vow of silence for the last 1 week, huh? So you need to say something. वो एक हफ्ते से मौन व्रत पे है. उसको सदमा लग गया मेरे पहले पिछले हफ्ते ही. बहुत इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है सर, क्योंकि ये जो अभी आपने बोला ना, जो लास्ट डू गुड थिंग्स एंड फॉरगेट, डोंट कीप ऑन टेलिंग, वो सभी बहुत बार हमने गलती किया है वैसे सभी. तो बहुत इंट्रोस्पेक्शन होता है कि ऐसे जैसे भगवान आके हमको थ्रू यू पीपल हमको वो चैनलाइज करके बता रहा है, वैसा लग रहा है सर. वेरी गुड. सो गुड इनसाइट्स. सो शेयर दैट इनसाइट. सी इनसाइट क्या होता है? इनसाइट्स बहुत अच्छे आते हैं. मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को बहुत इनसाइट्स आते हैं, और वो नॉर्मली कहाँ आते हैं आपको मालूम है ना? फ्लश करते समय सब निकल भी जाते हैं. इफ यू डोंट टेक एक्शन, इनसाइट्स आर नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ. तो कमिंग बैक टू यू कवन, इनसाइट आते हैं, शेयर करिए, नोट करिए. व्हेन आई एम इन मेडिटेशन आई गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स. The first thing I do is मैं कहीं भी आंख बंद ही रखता हूँ, मैं कहीं भी स्क्रिबल कर देता हूँ. जो मेरे एक नीचे कुछ भी होता है, पेन सामने होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं स्क्रिबल कर देता हूँ. बाद में सोचूंगा उसके बारे में, देन आई मूव ऑन. क्योंकि उस समय तो जबरदस्त डाउनलोड आ रहा होता है. आज क्या करना है, कल क्या करना है, नॉर्मली क्या करना है, एनीथिंग कैन कम टू मी उस समय. क्योंकि माइंड ब्लैंक होता है, डाउनलोड मिल रहा होता है, तो जो आता है मैं नोट कर लेता हूँ पहले कहीं ना कहीं एक वर्ड. बाकी चीजें मैं बाद में सोच लूंगा, वो वर्ड मिस नहीं होना चाहिए बस. तो लाइक दैट. तो इनसाइट जब भी आते हैं उस पर एक्शन लो. जैसे ही आप एक्शन लोगे, इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. वरना इनसाइट भूल जाओगे आप. तो थोड़ा सा जो भी दिमाग में चल रहा है उसको शेयर करो. And the moment you share, something will come up. See, some Preeti will say something, or Renu ji will say something, or I will say something. कहीं से कुछ सुन लोगे, उसके बाद आप जो बोलते हो ना अपने आप से, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होती है. हमारे बोलने से कुछ नहीं होता. I can say many things. Okay. वो सुनने के बाद आप अपने आप से जो कन्वर्सेशन करते हो, जो आप इनसाइट बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन वहां से होगी. तो वो क्या है, अगर आप डिस्कस करोगे और क्लैरिटी आ जाएगी. राइट? गुड. सो you can take your time and share whenever you think it is okay. Right? Sir, I can exactly share. Yeah. Now I understand the concept well, क्योंकि पहले मेरे साथ भी होता था कि whatever I had, मतलब छोटी छोटी चीजें भी होती थी तो मैं उसको पकड़ कर बैठ जाती थी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ. But then eventually धीरे धीरे, मतलब because of your guidance, I started leaving those things aside. सोचना ही छोड़ दिया उनके बारे में. ठीक है, सरेंडर कर दिया, जो होगा अपने आप होगा. And things are falling in place now. Wonderful, Smriti. Great sharing. And yeah, you deserve a round of applause. In fact, I know what all you have gone through and what all you have created in your professional and personal life. So congratulations. You are taking good strides in your spiritual journey. I can assure you that. And I know due to some reason your video is not on, but if you are comfortable. Actually, the thing is, in this room, the network does not come. I and understand. in the other room, my child keeps on disturbing me. That's fine. So whenever you are okay, आप switch on कर सकते हैं. तो लास्ट में मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए बोलूंगा, क्योंकि I normally upload some pictures also, लेकिन सारे अगर ब्लैंक आएंगे तो पिक्चर क्या आएगी? मेरी पिक्चर आती है सिर्फ. So ठीक है सर, ठीक है. लास्ट में 1 मिनट के लिए बोलूंगा, सब लोग अपना वीडियो एक बार ऑन कर लेंगे तो I will, that moment can be captured.
that will be good. All of us, लगना भी तो चाहिए ना कि आप आए थे, right? Okay, good. So anybody else who wants to share? और कौन शेयर करना चाह रहे हैं? क्या insights मिल रही हैं? थैंक यू बोलना है आपको. हाँ जी. आपको थैंक यू बोलना है एक चीज के लिए. Most welcome. आपने जो भी पापा की मैं हीलिंग करा रही थी, पापा मम्मी की, अभी वो 3-4 दिन मेरे पास ही रह कर गए हैं, आज ही गए हैं. अरे वाह. तो द फर्स्ट टाइम उनके मुंह से मैंने जो सुना, मतलब आई वाज फोर्स्ड टू, मतलब सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि कैन दिस बी पॉसिबल, कि जैसे वो इतना ज्यादा मोह में फंसे हुए थे समवॉट, आपने हीलिंग करी उनके चक्रास की, आपने कहा जैसे पापा के सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं, और आज उनके फर्स्ट टाइम उनके मैंने ऐसे अपना वो, आपको याद है मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था अबाउट ओल्ड एज होम एंड ऑल प्रोजेक्ट में, जो मैंने जो मेरा एक वो है ड्रीम, वो है माय पर्पस. तो वो मैंने ऐसे आई वाज टॉकिंग टू पापा, तो पापा का एक द फर्स्ट रिएक्शन, मतलब जो शायद आई वाज, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था. कहते हैं बेटा, जब भी मैं व्हाटएवर डिवीजन आई मेक, मैं अपना सारा पैसा उसमें लगाने को रेडी हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड व्हाटएवर आई हैव, मेरा अपना, और मेरा एक रूम बना दिया, मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, बिकॉज मुझे ये जो मोह चक्र है ना अपने बच्चों से, वो खत्म करना है. तो कहते हैं बस मैं, तू और तेरी माँ, मैं, तू और तेरी माँ, तू हमें तीरथ करा दियो, और तू मेरे को ओल्ड एज होम खोलने की सोच रही है, अब एक रूम अपना बना लियो, एक मेरा बना दियो, हम दोनों वहीं चलेंगे. मैंने कहा ठीक है. ग्रेट. वो भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ पर्सन हु, जो कभी बेड से नहीं हिलना चाहता था, कहते मैं भी ठीक हो जाऊंगा, मुझे पता है बेटा. Brilliant, Prakriti ji, बहुत बढ़िया. See, that's the power of the spiritual healing, I can say, correct? And again, not to say anything कि मैं कर रहा हूँ, it's all the divine will. Divine जो होता है, divine जब करता है तो मैजिक ही करता है. हमको सिर्फ वो उस मैजिक के लिए तैयार होना है. And you have no clue. clue. मम्मी को समझा रहे थे, आज मम्मी को समझा रहे थे कि तू अपना ये मोह क्यों नहीं छोड़ देती, for the first time ever. Right. So like it was a great thing, and I wanted to thank you इधर ही ग्रुप में. Thank you so much. Here only. Most मैं आपको welcome. फोन करके पर्सनली भी थैंक कर सकती थी, but definitely कि healing makes it a lot of difference. Absolutely great and wonderful, and magical results are possible. Only thing is you should be ready to accept that magic of the divine, correct? And as I've said, chakras blocked means only thing is that you have no clue that what divine has planned for you. आप उसको रोक के रख रहे हैं. It's like divinity आ रही है और आप जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, आप कंबल ओढ़ के आर्टिफिशियल लाइट जला के रूम में बैठे हैं. रूम बंद कर दो, रूम खोल दो, ब्लैंकेट हटा दो, कंबल उम्बल हटा दो, लाइट ऑफ करो, बाहर जाओ, तेज धूप है, बढ़िया रोशनी है. That is what healing is. So you will suddenly get, oh, great, wonderful. That is what the experience is. So keep doing healing, self healing करते रहिए. मेरे बहुत सारे मेडिटेशन के YouTube में वीडियो डाले हुए हैं, उनको डाउनलोड करिए, करते रहिए. कब कहाँ पे क्या क्लिक होगा, you will never know. And for those जिनको मैंने बताया हुआ, टोनी and स्मृति, देव, प्रीति जी, सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है. And the healing, they makes a huge lot of difference, correct? So anybody who is having any kind of problems can definitely get in touch with me and we can do the needful. All right, so good discussion, good sharing. So who else wants to share? Tony, I want to hear something from you. Are you there? Yeah, I'm very much here. तो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह लगा, मेरे को लगा पिक्चर लगा रखी है and you are away. Actually, as the friend from Bangalore also said that introspection बहुत ज़्यादा हो रहा है. So I really don't know where to put my finger and what to say and what not to say. So I'm just basically today I'm just trying to observe into the discussion as to where exactly is the pain area and what is it that I'm not doing correctly and what is it that maybe I should be doing. As such, I don't know. One thing is definitely there that जैसे अभी the lady, I don't know her name. She was saying that one is supposed to at times we do something out of force. जबरदस्ती जो करना पड़ता है. So
Unfortunately, as you would know very well, because you know everything about my life. I still have that sort of image of a good boy. So I have suffered because of that image to a very, very great extent. Rather, I would say um, almost, I think I would say 30 years of my life, I've been living under that image of a good boy. And that good boy image has cost me plentiful. Matlab, like, there are no words to explain even what I've been through, but ठीक है. Some people learn late in life, some people learn very fast in life. So I've always been a late bloomer. So chalo ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, whatever. At least, but one thing is definitely there, that after coming to realize one thing, that I was not being myself in those 30 years. I was not being myself. So once I realized that because I was not being myself, I was not being happy also. I was actually killing myself every single moment, every single day, by doing something which my heart was not into it. And once I realized, I simply called it, I raised my hands one fine day. I said, nothing doing, I'm not going to be this good image any longer. Not exactly good image, I would say. See, as far as being a good person is concerned, being a good human being is concerned, that is a very different thing totally. But doing something which pleases somebody else and does not give you any peace of mind or pleasure or happiness is definitely something that you're doing out of force. Got it, Tony. So whatever you have said, I have understood the whole story behind it. Yeah. What you're going through now, and possibly what is the solution that you're looking for. So I'm clear on that. Yeah. So I was just basically, today I was just trying to basically observe as to what other people in the group were sharing, because I was not understanding as to what I should, put my finger at, or what should I discuss, because everything that has been going around in my life has been discussed in the group already. Yeah. So great, and hats off to Preeti ji. If you know that, I'm very happy for her that she's found the alignment with the divine, and she's left everything to the divine energies, that they'll do what she was not being able to do. I think I should, वैसे तो मैं surrender कर ही चुका हूँ, but I think I थोड़ा और let go कर देता हूँ. Maybe may further help me out. Yeah. Because I am also just waiting for the divine to intervene and take and do something about my life, because not that I'm counting on it or something of that sort. Okay, totally dependent है उस चीज पे. But yeah, I'm very wishful and hopeful and trust that the divine will come forward and do something about my life as well. Tony, let me tell you something. Yeah. You're already blessed with the divine. Divine energies are already there. You're already blessed. Otherwise, you will not be in this group. When you are seeking, the moment you are a seeker, you already have the divine grace. Otherwise, you won't be seeking. Otherwise, you would be sleeping like you did for the rest of your life. That's true. That's true. Absolutely true. Number one, congratulate yourself. I think you don't appreciate yourself much. I have to do that every time. So you take your hand like this. Everybody do this. Raise your right hand up. Take it back and say, good job done. You are living a good life. That is how you pat your back. Okay. So you need to appreciate yourself. You need to love yourself. देखो जब तक अपने अंदर, when you have to love yourself, जब आपके अंदर लव की एनर्जी आएगी तभी आप लव बांट सकते हो. आपके पास लव की एनर्जी है ही नहीं तो आप लव बांटोगे कैसे? You understand? तो
First, align with the divine energies. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am full of love. When you are full of love, the only thing you can give is what? Hatred? Love. No way. You will give only love. True. Okay? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, उससे कनेक्ट कर जाओगे आप, ठीक है? एक बार एक टीचर या एक प्रोफेसर मान लो क्लास में आता है, सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो सबको एक ग्लास पूरा भरा हुआ लिक्विड देता है. ओके, पूरा भरा हुआ है, कईयों के में चाय है, कईयों में कॉफी है, कईयों में कुछ है, you know, like that. And then he says, you move around and talk to each other and don't bother about, you know, what is happening. So they move around, exercise था ये, तो सब लोग जाते हैं, मिलते हैं, सब करते हैं और सबका ग्लास टकराते हैं और वो गिरता है. Now he says, what happened? Why did you spill that? ग्लास में से गिरा, क्यों गिरा? उसने टक्कर मारी, कहते नो. कहते चलने को बोला, कहते नो. कहते नहीं, मैंने देखा नहीं, सामने से वो आ रहा था इसलिए टकरा गया, कहते नो. कहते उस ग्लास में से वो चाय उसके ऊपर इसलिए गिरी क्योंकि ग्लास में चाय थी. अगर ग्लास में पानी होता तो पानी गिरता. तो आपके अंदर क्या है? वही गिरेगा. आपके अंदर क्या है? जो था वही गिरेगा. So first you have to fill yourself with all the सत्वगुण that you were talking of. Love, peace, power. आप उसका समुद्र बन जाओ. अब कोई आपसे टकराएगा तो आप उसके ऊपर क्या गिराओगे? उल्टी तो नहीं करोगे ना उसके ऊपर. प्यार गिरेगा, पीस गिरेगा, पावर गिरेगी. So first you have to fill yourself with love. So Tony, what I would tell you is that first love yourself. When you love yourself, you will be filled with love. And keep saying, I am Om Shanti, I am a peaceful soul. Om Shakti, I am a powerful soul. तो victim कार्ड अपने आप चला जाएगा. आप विक्टिम की गेम खेलना बंद कर दोगे और एंजाइटी और डिप्रेशन में कभी नहीं जाओगे क्योंकि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शक्ति स्वरूप आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो. जिस मर्जी लैंग्वेज में बोलो, जब ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर भर जाएंगी, जिस मर्जी से टकराओ, जैसे मर्जी लाइफ जियो, आप यही चीज औरों को दोगे. मेकिंग सेंस? Yeah. Once you do this and rest of the things are taken care of, don't worry. डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके पास्ट लाइफ के ब्लॉक्स हट रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ के हट रहे हैं, फ्यूचर लाइफ के हट रहे हैं. एंड one bright day you will get all your desires fulfilled and magic will happen. Wait for the magic to happen. And that day is very soon to come. Absolutely, it is coming. I can see that. I'm sure. तो You can also see that when we discuss. प्रीति जी, आपके मुंह में घी शक्कर. फिर पार्टी लेने वाले मुझे आपके यहाँ अपने मुंह में घी शक्कर डालो, अपने मुंह में घी शक्कर डालो. We should be having the gratitude to the divine and the firm belief कि divine is blessed you and the results are on the way. And I'm sure one of these days, जैसे प्रीति जी ने अभी शेयर किया, जैसे प्रीति जी ने आज शेयर किया, I'm sure one Wednesday you would be sharing that. Yes, and I know that it is going to happen. Very soon. वैसे भी हम लोग जो हैं बड़े स्टिंजी हैं, हम इतनी लंबी लाइफ जर्नी पे चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा जन्म चल रहा है हमारा ह्यूमन लाइफ का, कितने साल हो गए हैं, लेकिन हम एक हफ्ता, अगर मैं बोलूं 6 महीने बाद आपकी लाइफ एकदम जबरदस्त होने वाली है, तो यू विल तो है 6 महीने तक मैं रोना पड़ेगा. आप ये नहीं सोचते 6 महीने के बाद बढ़िया है तो यू कैन सेलिब्रेट ऑल्सो ना. अगर 9 महीने बाद बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हम खुशियां मनाते हैं कि रोते हैं? When the news comes, the baby is going to come in 9 months time. We are all jumping around, right? Except the mother, I mean the future mother. तो सारे लोग उछल रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं. क्यों? 9 महीने बाद खुशियां आएंगी. So similarly, if I tell you, boss, 6 महीने बाद तुम्हारी लाइफ में बम्पर खुशियां आने वाली हैं, you should be jumping up with joy, thanking the divine, believe that it is happening, and it is going to happen, no? Because आगे क्या डाला? Divine will be done. आपकी मर्जी है, मेरी तो मर्जी है ही नहीं. See, when you are doing something, you will struggle. When you say divine will be done, now the universe will has to do it. Now, उनको struggle नहीं बोलूँगा, उनको करने दो ना काम. When you delegate to divine, you are easy. Then you are not busy. Then you are easy. तब लाइफ में busy भी नहीं रहोगे, आप बहुत easy रहोगे. Relax. बॉस को काम दे दिया, बॉस काम कर रहा है मेरा. You know? That is how you should. That is how you should live life. Enjoy. Correct. And that is what exactly is happening. So don't bother. And what you said कि मैं पहले nice image के, आप nice boy नहीं थे. You are a kind person, I know. You are a nice person. You are a very good soul. Otherwise you won't be here. Let me tell you that, all of you. This whole group is a group. You know, soul is always good. Only thing is we have to identify ourselves with that soul. हम ego से attach हो जाते हैं. Frequency people will be sitting here. Only the people with the same vibration and frequency will be sitting here. Absolutely.
हम ईगो से अटैच हो जाते हैं। तो टोनी, व्हाट यू वर डूइंग टिल नाउ फॉर द लास्ट 30 इयर्स व्हेन यू सेड कि मैं नाइस बॉय इमेज के साथ अटका हुआ था, आप उस इमेज के साथ अटैच हो गए थे जो कि ईगो है। You created an ego, I am a nice boy or a nice boy image, whatever. क्यों? As a child, you became a nice boy to gain the love and appreciation from everybody. और वो तुम कंटिन्यू कर रहे हो अभी तक। ओके? तो अगर मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ जो टोनी यू विल कनेक्ट वेरी फास्ट, आइडेंटिटी एंड पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो ना? पॉसिबिलिटी में आने के लिए, पॉसिबिलिटी लव में आने के लिए आइडेंटिटी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। वहां से अटैचमेंट छोड़ोगे तो यहाँ अटकोगे ना। ईगो को पकड़ के रखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी कहाँ से मिलेगी? आइडेंटिटी पकड़ी हुई है आपने, आइडेंटिटी में जी रहे हो, तो आइडेंटिटी में तो पेन और हर्ट और ब्लेम ही रहेगा ना। फ्रीडम में आओगे, फ्रीडम चाहिए, लव चाहिए, तो आपको पॉसिबिलिटी में आना पड़ेगा। तो create yourself as a possibility of love. This is a language which Tony and I have done in a program, so I'm talking in that. Create yourself as a possibility of love, and this image will go. Correct? So attachment यहाँ से कम हो जाएगी. All right, great. So Tony, did I answer your queries or did I say? Absolutely. Great, wonderful. Since I know what is bothering you, I know where to quieten you. That's fine. Great. So Preeti ji, wonderful. Tony ji, good. Kavan, any questions from you? Because I think we have already crossed the limit, 1 minute over. So we will be taking the last closing statements. Anybody who wants to share? Yeah, sure. Preeti ji, बताइए. शशि सर, मैं सिर्फ एक बात आपसे और प्रीति मैम से खास तौर पे जानना चाह रही हूँ। वो ये है कि सर, मुझे अगर मुझसे सामने से कोई भी किसी भी चीज के लिए एक्सपेक्ट करता है तो मैं ना नहीं बोल पाती हूँ। कई बार मतलब किसी चीज का हुआ या कुछ भी, जो अगर किसी ने मांग लिया है तो वो फिर मना नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए फिर मुझे बाद में सोचना पड़ेगा मुझे ना करना चाहिए था। इसका क्या हो सकता है सर? तो सबसे पहले तो ये सोचिए, मेरे को नहीं मालूम कौन है वो और वो क्या मांग रहे हैं और किसके लिए आप ना नहीं बोल रहे हो, बट अगर ना बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, पहले ये सोचो, इफ यू से नो व्हाट विल हैपन? पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सामने वाला हर्ट हो इस वजह से कि उसको बुरा लगे, या उसने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं उसके लिए ये कि मुझसे मिल सकती है वो चीज और मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो वो हर्ट हो उसके लिए। तो इसमें 2-3 चीजें हो सकती है। सिंस आई डोंट नो व्हाट इट इज, सपोज इफ समबडी कम्स एंड आस्क्स मी मनी, बड़ा सिंपल सा रूल है मेरा, ऐसे कि बॉस आई कैन पे यू, आई हैव द मनी बट आई विल नॉट गिव यू। मेरे रूल्स के खिलाफ, मेरे एथिक्स के खिलाफ है। आई डोंट लेंड मनी टू पीपल। फ्रेंडशिप खराब हो जाती है या कुछ भी बोल लो, तो मैं फ्रेंडशिप में क्योंकि सर एक उससे बड़ी प्रॉब्लम फिर ये रहती है कि अगर किसी को कुछ पैसे वगैरह दे दिया उधार तो वो फिर वापस भी नहीं मांगे जाते हैं। वो आदमी जितनी बार देखेगा, मैं तो बोल ही देता हूँ, मैं उधार दूंगा तो मैं ये मान के देता हूँ कि मेरे को वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं देता नहीं हूँ। तो डोंट आस्क मी मनी, यू वांट एनर्जी, यू वांट हीलिंग फ्रॉम मी, आई विल सेंड यू हीलिंग। यू जनरेट लॉट ऑफ मनी एंड देन यू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, आई विल सेंड यू लॉट ऑफ लव। सो व्हेन यू आर फिल्ड विद लव एंड पीस एंड पावर, एज आई सेड, तो वो दिखता है लोगों को और लोग समझ जाते हैं ओके ये पैसा नहीं देना चाहता है, इसके पास नहीं देना चाहता, बट ही इज रेडी टू विल हेल्प मी। मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट गिव हिम मनी। एंड दे हैव बीन मेरे कॉलेज फ्रेंड्स। मैंने बोला हुआ है, मैं कहता इमरजेंसी है, सिचुएशन है, समझ में आती है मुझे बात, बट जस्ट लाइक दैट इफ यू वांट टू से कि भाई मैं फंस गया हूँ तो दे दे, मैं फंस गया हूँ तो सोल्यूशन ढूंढ उसका। बिकॉज बोरोइंग मनी फ्रॉम पीपल इज बिकम अ पैटर्न इन हिज लाइफ, आई नो दैट। कुछ लोगों का एक पैटर्न बन जाता है, बोरो मनी करके एंड देन दे टॉपिक मारते हैं। मैं कहा बॉस इस तरीके से लाइफ जीनी है तो डोंट काउंट मी इन, यू लिव योर लाइफ, डोंट काउंट मी इन योर लाइफ। मैं हील कर सकता हूँ, एनर्जी दे सकता हूँ, पैसे नहीं दूंगा। सो आई सेड नो वेरी पावरफुली एंड दे गेट इट विदाउट लॉस ऑफ पावर, दे आर स्टिल माय फ्रेंड्स, वी डू ऑल काइंड ऑफ चैट्स, बाकी सब ठीक है, पैसे नहीं। तो यू शुड हैव, पहले मेरे पास भी ये फ्रीडम नहीं थी बाय द वे, इसलिए मैं ये पैसे की बात करूँ। कोई मैं पहले मेरे से मांगता था, मैं तो ओके दे दूंगा, अब मेरे को जितनी मर्जी दिक्कत हो मैं दे देता था, बिकॉज़ आई वाज अ पर्सन नाइस बॉय इमेज, मना नहीं कर सकता। बाद में सर वो भूल जाते हैं उसकी जगह, फिर जब वो सामने से निकलते हैं तो अपने पैसे दिख रहे होते हैं उन आदमियों की शक्ल की जगह। तो या तो मान लो कि नहीं देने हैं, और अगर दे दिए हैं तो मान लो कि वापस नहीं आने वाले हैं। आ गए तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी करो तो आपको पेन नहीं होगा। अब एक ऑप्शन ये है जो शशि भैया ने बोला, दूसरा ऑप्शन मेरे वाला जो मैं करती हूँ, मैं दे देती हूँ कि भगवान ने मुझे माध्यम बना रखा है इसको हेल्प करने का, और अगर वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो उसके कर। बढ़िया। सो इफ यू कैन अभी डू मैंने दैट, शशि सर के साथ प्रीति मैम आपका नाम भी लिया, अभी मैंने जवाब दिया।
मैंने तभी जवाब दिया. One of my friend is sitting in the group, Vishakha, she is my friend. She knows me very well. वो बेसिकली सेकंड करेगी क्योंकि उसने मेरे को बचपन से ऐसे ही देखा है कि मैंने दे दिया, अगर मुझे कोई वापस देगा तो ठीक है. She knows me for past 40 years, I guess, and we both are best friends. अब वो मेरे को जानती है और वो सेकंड करेगी कि वो मेरा कभी भी कोई मेरे से कुछ मांगता तो मैं ना नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोच कर देती हूँ कि मुझे देगा तो ठीक है, नहीं तो वो उसके कर्म. शायद मेरे को वो भगवान ने दिया इसीलिए था कि मुझे उसको देना है. Absolutely. Great. Wonderful. So let me just summarize the whole thing. तो सबसे पहले रेणु जी, जब कोई आपको ना बोलना हो तो पहले तो ये सोचो ना किसको बोलनी है और किस चीज पे बोलनी है, और उसमें मेरी पावर ऑफ फ्रीडम खत्म हो रही है या नहीं, और अगर ना बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा. अगर ये क्लैरिटी रहेगी आपको, और उसके बाद इफ यू आर फुल ऑफ लव यू विल शेयर ओनली लव. जो भी बोलना होगा लव, पीस, पावर के साथ बोलोगे आप. लॉस ऑफ पावर नहीं रहेगा कहीं भी. नंबर 1. नंबर 2, जब आप जैसे बोल रहे हो कि जैसे प्रीति जी ने बताया, ये जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कर्मा आई वुड से, जिसको हम बोलते हैं चैरिटी. मान लो इसे. ओके, दैट मींस दे दिया, चाहिए तुमको ले लो, और मेरे को वापस भी नहीं चाहिए, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही. दोगे तो बहुत अच्छी बात है. I have gratitude towards you. सुनिए, what I'm saying is this is the highest form of, you can say, service which we can service नहीं बोलूंगा, इसे चैरिटी बोलूंगा. चैरिटी और सर्विस में फर्क है थोड़ा सा. नीड टू अंडरस्टैंड. चैरिटी आप कुछ कर रहे हो विद नो एक्सपेक्टेशन कि वो कुछ भी मेरे को वापस करेगा. जैसे कोई रिक्शा वाला, उसको मैं अगर कंबल दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, दैट इज चैरिटी. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम. करेक्ट. सेकंड होता है जैसे सर्विस है जो मैं कर रहा हूँ. ओके, दैट इज व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मैं हीलिंग कर रहा हूँ, एंड इन दैट सर्विस आई एम एक्सपेक्टिंग सम माय एनर्जी एक्सचेंज. दैट हैज टू बी देयर. एनर्जी एक्सचेंज के एक रूल भी है. तो ये सर्विस वाला कैटेगरी है. दिस इज आल्सो वेरी हाई क्वालिटी कर्मा. ओके. थर्ड वन इज, जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं इसको टेक्निकल में बोलूं तो ये होगा निषिद्ध कर्मा, विच इज फॉरबिडन कर्मा, विच मींस एवरीथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ. ओके, या अगेंस्ट जिसमें इमोशन जो नेगेटिव होंगे, ये सब निषिद्ध कर्मा है, फॉरबिडन कर्मा. ओके, तो ये फॉरबिडन कर्मा है, आपको उससे आपको दूर रहना. तो अगर कोई फोर्स भी हो रहे हो आप सिचुएशन से या कुछ, अगर आपका कोई नेगेटिव कर्मा की तरफ टेंडेंसी आ रही है, स्टे ए बिग नो टू दैट. निषिद्ध कर्मा विल गिव यू लॉट ऑफ कार्मिक डेट्स. उस सोल के साथ भी, आपके लिए भी, आपके संस्कार के लिए, आपके माइंड के लिए, जो भी आप बोल सकते हो, ईगो, इमोशन, तो वो ईगो को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो निषिद्ध कर्मा के अंदर नहीं जाना. सो ऑल द फॉरबिडन कर्मा इसमें आएंगे. आपके इमोशन सारे नेगेटिव इमोशंस भरे पड़े होंगे इसमें. तो लाइक यू नो, चीटिंग, धोखा देना, चोरी करना, बोलना, ये सब निषिद्ध कर्मा है. तो निषिद्ध कर्मा में नहीं घुसना. ये दो चीजें याद रखें, या तो चैरिटी वाले कर्म करो या फिर सर्विस वाले कर्म करो. सर्विस. करेक्ट. सो बोथ दीज आर गुड इनफ. एंड जो मैं जिस ट्रेंड में जाता हूँ, आई नॉर्मली गो इन द अप्रोच ऑफ सर्विस, अनलेस आई एम वेरी क्लियर कि ये चैरिटी के लिए करो. देन आई हैव द स्पेसिफिक वे हाउ टू डू दैट. राइट. लाइक खाना खिला दिया लोगों को, कपड़े दे दिए, दान कर दिए, या ब्लैंकेट्स दान कर दिए, लाइक दैट. सो दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ चैरिटी व्हिच आई हैव. या डोनेशन दे दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, उनके थ्रू डोनेशन दे दिया, लोगों का उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है. तो दैट इज चैरिटी. तो बड़ा क्लियर होना चाहिए, चैरिटी में कर रहा हूँ तो चैरिटी कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ तो सर्विस दे रहा हूँ, निश्चित कर्मा नहीं करूंगा. क्वालिटी ऑफ कर्मा आपके अच्छे हो जाएंगे तो आप में बहुत पावर आ जाएगी, नो बोलने की भी, यस बोलने की भी. कहाँ नो बोलना है, कहाँ यस बोलना है, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होगा आपको. Yeah, that will give you some more clarity. All right. Okay, so I have overshot time. I need more permission to continue. Otherwise, we will wind this off. अगर और किसी के कोई सवाल नहीं है तो we will close this. Yeah, come on. Sir, आपने बोला कि we have to be filled with love, peace and power. ये power के बारे में आप थोड़ा और बोल सकते हैं या नेक्स्ट वीक उसको डिस्कस करेंगे सर? इसको पावर को अभी मैं एक लाइन में बता देता हूँ. पावरफुल सोल मतलब मैं वीक और हेल्पलेस और विक्टिम नहीं हूँ. ओके. तो अगर आपको लगता है मैं वीक हूँ, पावरलेस हूँ, विक्टिम हूँ, कोई मेरे को फोर्स कर रहा है, तो उसको तोड़ने का है ये कि आई एम अ पावरफुल सोल. मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ. नोबडी कैन फोर्स मी टू डू एनीथिंग. ओके सर. ओके. पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ. पावर मींस यू आर, आई एम शक्ति. ओके सर. तो शक्ति का रूप हो आप. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप टेलिंग योरसेल्फ. तो वो क्वालिटीज, वो सतोगुण आपके अंदर आ जाएंगे. Okay, great. Any other question?
All right. So with this, we come to the end of the session. So thank you, everybody. Thank you, Smriti ji, Thank you. Renu ji, Thank Kamal you. ji, Thank you, Preeti Shashibhaiya. ji, Thank you, Tony sir. ji, Thank you, everyone. Thank you, sir. Shaka ji. Thank She's you, not in the thank you. frame. So thank you. Have a great day. Have a great year. Enjoy your celebrations, and let's be back next year with full bang on. Right? Happy New Year in advance. Happy New Happy Year. Happy New Year to all of you. Happy Happy Enjoy New Year your to all of life. you. Happy New Enjoy Year to your all. life and enjoy your day. Thank you. Yeah, okay. Happy New Year to all of you. Thank you. Divine blessings. Thank you. Divine Same to you, blessings. sir. Thank you. May your new year be very prosperous, full of love and happiness. Thank you. Thank And you. same Thank you, Thank Preeti. you. Same to Thank you. you. Same to you, ma'am.